Assalamu alaikum students. Today we will do some important questions of exercise 12.2. Here we have question number 2 which is find the length of the third side of a triangular building that faces 13.6 meters along one street and 13 meters along another street and the angle of the intersection between the streets measure 72 degree. Okay, let's suppose we have a triangular building and one side is 13.6 meters and another side is 30 meters and the angle of intersection between them means जिन दोनों की लेंथ गिवन है उन्हीं के बीच में जो हमारे पास एंगल बन रहा है that is 72 degree and we have to find the third side. Let's suppose यहां पर मैं इनकी नेमिंग कर दूं अगर vertex A बी एंड सी. कैपिटल ए के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल ए होगी एंड कैपिटल बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी एंड कैपिटल सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी. सो वी हैव टू फाइंड हियर द स्मॉल सी, द वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड. अब यहां पर मैं जो है वो लिख लेता हूं कि मुझे गिवन क्या क्या है डेटा. Given as the value of A which is 13 meters and B which is 13.6 meters and also the angle which is 72 degree and the required term, the required value is C. Okay, हमारे पास डेटा बन गया. अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. सॉल्यूशन. Okay students, we have a cosine law to solve this question. Cosine law is C फाइंड करना है तो C स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये थीटा मुझे गिवन था 72 डिग्री, वो C का एंगल था तो C का एंगल वो गैमा होगा. ठीक है, A का एंगल अगर होगा तो अल्फा, B का एंगल बीटा एंड C का एंगल गैमा होगा. तो ये मुझे जो थीटा गिवन है ये बेसिकली मुझे गैमा गिवन है. कोसाइन लॉ फॉर C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos गैमा. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर C स्क्वायर फाइंड करना है, C फाइंड करना है तो उसके लिए कोसाइन लॉ ये वाला अप्लाई होगा. मेरे पास ए बी और गैमा तीनों की वैल्यूज गिवन है, जस्ट प्लग करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज 13 मीटर्स, 13 इसका स्क्वायर प्लस बी इज 13.6 स्क्वायर माइनस 2 into 13. The value of a is 13 and the value of b is 13.6 and cos gamma, gamma is 72 degree. अब इनको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. Okay students, question number 3 of exercise 12.2 is if one side of a triangle is y units long, another side is 3 times as long and the angle between the two sides measure 35 degree, find the measure other two angles and the third side. Okay, let's take a triangle. एक triangle है A, B and C. One side is y units long and another side is 3 times as long, means 3y units, and this is y units, and the angle between them is 35 degree. And we have to find the third side and the remaining two angles. The angle of A is alpha, angle of B is beta. We have to find these two. And the side C, capital C के सामने वाली side small c होगी and the opposite side of capital A is small a and the opposite side of capital B is small b. डेटा लिख रहे हैं.
गिवन हमारे पास क्या क्या है, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है 3y यूनिट्स एंड द वैल्यू ऑफ b इज y यूनिट्स, gamma is 35 degree and the required values are c, alpha and beta. Okay students, now solving. c फाइंड करने के लिए कोसाइन लॉ अप्लाई करते हैं यूजिंग कोसाइन लॉ. कोसाइन लॉ इज फॉर c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos gamma. Okay, just substitute the values. The value of a is 3y whole square plus y whole square minus 2 into 3y and value of b is y and cos gamma is students 35 degree. Just solve with the calculator. 3 square 9 and y square plus y square minus 2 multiplied by 3 is 6, y multiplied by y is y square and the cos 35 is 0.8526. c square is equal to students 9y square plus y square is 10y square minus 6 multiplied by this value and the answer will be 5.1158 y square. ये y square as it is रहेगा, ठीक है. ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई, ये वाली वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई हुई और y as it is y square यहां पर आ गया. नाउ इन दोनों को आप सॉल्व कर लें क्योंकि दोनों y स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं. तो आपके पास c स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.8841 y स्क्वायर. नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स फॉर स्क्वायर खत्म करने के लिए तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8841 y स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा. ये c का स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल. नाउ इसका रूट चेक कर लेते हैं. रूट ऑफ दिस वैल्यू इज 2.21. c is equal to 2.21 y units. ओके, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई. यहां पर y पर भी स्क्वायर था तो इससे अंडर रूट कैंसिल हुआ, जस्ट y बचा और इसका अंडर रूट हमने सॉल्व किया तो 2.21 आ गया. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा एंड बीटा. अब अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए हम यूज कर लेते हैं साइन लॉ. यूजिंग साइन लॉ इज b अपॉन साइन बीटा अपॉन b is equal to sin gamma upon c. यहां पर मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो b को उस तरफ भेज देते हैं. sin बीटा is equal to b sin gamma divided by c. Now substitute the values of b, gamma and c here. Sin beta is equal to the value of b is y, sin gamma is 35 degree and divided by c is 2.21 y. ये देखें y से y कैंसिल हुआ, sin 35 डिवाइड कर देंगे 2.21 से. हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू आई है 0.2364. बीटा यहीं रहने देते हैं
साइन को उस तरफ भेजते हैं तो साइन इनवर्स 0.2364 साइन इनवर्स, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू जो आई है वो आई है बीटा इज इक्वल टू 15.19 डिग्री, ओके, या 15 डिग्री. दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा. Now for finding alpha, we know that sum of three angles of triangle is equal to 180 डिग्री. ठीक है, ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का अगर सम किया जाए तो 180 डिग्री के इक्वल होता है. यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बीटा और गामा की वैल्यू है मेरे पास, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 15 प्लस एंड गामा की वैल्यू इज 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों को ऐड कर देते हैं. अल्फा प्लस 35 प्लस 15 इज 50 इज इक्वल टू 180. 50 इक्वल के उस तरफ भेज देंगे तो 180 माइनस 50 और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 130 डिग्री. These are the required values. हमें A, B और गामा गिवन था, अल्फा, बीटा एंड C फाइंड करना था. C भी हमने फाइंड कर लिया, then बीटा, then अल्फा. Okay students, here we have question number 4 of exercise 12.2. Question is that if the length of larger side of a parallelogram is 55 centimeter and one diagonal of the parallelogram makes angles of measure 30 and 50 with a pair of adjacent sides, find the length of the diagonal. Okay students, consider a parallelogram. एक पैरेललोग्राम हम कंसिडर कर लेते हैं जिसकी साइड्स ए बी सी डी हैं. ठीक है, ए बी सी एंड डी. ओके, यहां पर हमें क्या कहा गया है, द लार्जर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर्स. यहाँ पर पैरेललोग्राम में आप देखें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. इसमें लार्जर साइड कौन सी हुई, ये वाली दो साइड्स. ठीक है, तो किसी भी एक पर आप लिख लें 55 सेंटीमीटर्स. उसके बाद एंड वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम मेक्स एंगल्स ऑफ मेजर 30 एंड 50 with a pair of adjacent sides. This is the diagonal of a parallelogram. Adjacent sides means students, एक ये वाली साइड का एंगल है, यहाँ पर एंगल है एक पैरेललोग्राम इसके डायगोनल का 30 डिग्री एंड इसी के एडजेसेंट साइड पर है 50 डिग्री. ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, तो 30 अगर ये एंगल है तो यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा और 50 ये वाला 50 है तो ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें मैं ये नीचे वाला जो डायग्राम है, नीचे वाला जो ट्रायंगल है, इसको मैं इससे सेपरेट कर रहा हूं. हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल. देखिए कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी. अगर मैं ये वाली साइड को अलग कर लेता हूं तो दिस इज 30 डिग्री and this one is 50 degree and this side is 55 centimeters and we have to find this. okay, A B C, तो B के opposite side जो है वो B means हमें यहाँ पर B फाइंड करना है, स्मॉल b. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह अलग बनाना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए बना लें, अदरवाइज ये भी फिगर अगर बनी रहे तो वो भी ठीक है. नाउ डेटा given values are angle of A is alpha given है 30 degree and gamma is 50 degree and
द साइड, दिस साइड इज सी, सी के ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल सी होगी, तो हमें जो है वो सी भी गिवन है 55 सेंटीमीटर्स, एंड वी हैव टू फाइंड द साइड बी, बी साइड हमें जो है वो फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द डायगोनल. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू. नाउ solution. We know that sum of three angles of triangle is equal to 180 degree. तो यहां पर मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर बीटा, बीटा निकालने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर अल्फा की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री है, प्लस बीटा हमें फाइंड करना है, गैमा इज 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 50 प्लस 30 इज 80, इक्वल के वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज 180 माइनस 80 100. ओके, बीटा हमारे पास आ गया 100 डिग्री. Okay, now we have to find the value of b. Now using sine law. Okay, sine law is b upon sine beta is equal to c upon sine gamma. ठीक है, क्योंकि मुझे c गिवन है, यहां पर मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है, बीटा भी है मेरे पास, गैमा भी है, c भी है. साइन बीटा को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, यहां डिवाइड कर रहा है, इक्वल के वहां जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, c मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गैमा. एंड नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ c, बीटा एंड साइन गैमा. द वैल्यू ऑफ c इज 55, साइन बीटा is 100 divided by sin gamma, and the value of gamma is 50 degree. Now कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं इसको. Now the value of b is 70.7 centimeters. And this is the required answer.